हमारे गांव बहुत दूर दराज है। इतना दूर उफ्तादा गांव है। सर्दी में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता है। उस वजह से हमारे पानी बंद होते हैं। रोड का थोड़ा सा मसाइल है। Literacy is explained as the ability to read and write. Anyone who can read and write their name is considered literate. According to the recent economic survey of Pakistan, our literacy rate stands at 58%. While today the world strives to bring innovation to education, our struggle is still for the basics. In the remote mountain valley of Shimshal, bordering China and accessible only by a road that runs along the gorge of Shimshal River, mountaineers and shepherds struggle to improve the condition of education, while battling the struggles of their harsh landscape and isolation. But today's economic burden and seemingly unimproved quality of education hinders the expected progress and development. The government school in the valley is the only affordable option for most families. Despite being run as a boys-only school, parents have pushed to break stereotypical barriers so their daughters can have access to affordable education. मेरे जो है 7 बच्चे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा फीस थी तो मैं वो नहीं दे सका। गवर्नमेंट का मैं पेंशनर हूँ, फौज से रिटायर्ड हूँ। जब मैंने उधर वो किया तो उन्होंने कहा वहाँ गवर्नमेंट स्कूल अगर दाखिला नहीं देते फिर हमें बताए, लेकिन उन्होंने दाखिला दिया, इसलिए उसका गवर्नमेंट स्कूल में मैंने एडमिशन किया। मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ कि मैं ये लोग पढ़े और आगे अपने मुस्तकबिल को रोशन करें और अच्छे इंसान बने। यहाँ पे बहुत सर्दी है, इसी वजह से हम अपने बच्चों को लकड़ी दे के वो फिर स्कूल जाते हैं। लकड़ी न दे सके तो स्कूल में उन लोगों के लिए पढ़ाई में बहुत मसला होता है। अगर उसको सर्दी लग जाए तो वो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे सकती। For Gulshan Parveen, a grade 6 student from the village of Aminabad, aspirations are high. हम यहाँ से स्कूल में आधा घंटा और फिर आधा घंटा 1 घंटा हम चलते हैं। Her life is in a transition from the shepherd lifestyle of her ancestors to the capitalistic demands of today's world. अपने माल को यहाँ से एक जगह है हमारा शेखदी में लेके जाते हैं। स्कूल से आके हम अपने खेती बाड़ी के साथ मसरूफ़ होते हैं, साथ साथ अपने पढ़ाई भी करते हैं। मैं गिलगित से आगे नहीं गए और मुझे गिलगित बहुत पसंद आए। दुनिया में तालीम बहुत ज़रूरी है और हमारे गांव बहुत दूर है। मेरा नाम गुलशन परवीन है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं बड़े होकर इंजीनियर बनेगा। Even though the public education systems are still in the process of achieving basic infrastructural needs, Gulshan and her fellows in Shimshal realize the need for better equipped schools and trained faculty. सर्दी के वक्त में स्कूल के अंदर दाखिल होते तो बहुत सर्दी होती है, फिर आग जलाती है और पढ़ाई करते हैं। गिलगित के स्कूल में साइंस लैब भी है, कंप्यूटर लैब भी है।
हमें चाहिए कि हमारे स्कूल में भी साइंस लैब हो और हम कंप्यूटर चलाना भी सीखे, हमें दूसरे सब्जेक्ट्स में भी फ़ायदा हो। प्रॉपर लाइब्रेरी हमारे पास होनी चाहिए जहाँ बहुत सारे किताबें हो, और लाइब्रेरी में कहानी की किताब पढ़ के हमें मालूम हो गया कि दुनिया में क्या क्या है। The faculty at the government middle school in the valley are aware of the issues they face in providing quality education, but are limited by the lack of necessary resources and demographic limitations. Until recently, the government school lacked space to accommodate grade levels in separate classrooms and were forced to run up to 3 classes in a single room. In November 2018, a new building was added to the school campus. With the additional space now available, the government aims to upgrade the school from middle to high grade levels in the coming year. मेरा नाम गुलाम बेग, हेड टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शिमशाल। तो हमारे स्कूल में जो काफ़ी इश्यूज़ है एजुकेशन के हवाले से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो है दूसरे एरियाज़ में इजी एक्सेस है वहाँ पे, तो वो जाके वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन शिमशाल में आज तक कोई ऐसा है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। खुशकिस्मती से अभी यहाँ पे IEI एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमारे डिपार्टमेंट के साथ MOU करके अभी यहाँ आए हैं। In collaboration with Innovate, Educate and Inspire Pakistan, a non-profit volunteer organization, the school and community have embarked on a school development project to raise the bar on the quality of education in their valley. Under the first phase of the project, the school and community came forward to shed light on the problems they face and the vision they have for the future of their children. हमारे बच्चों के अंदर है एक स्पार्क है कि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करने का बड़ा शौक है। हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो सिलेबस की कंप्लीशन की तरफ होता है, तो हम एक्टिविटीज़ बेस्ड एनवायरनमेंट नहीं दे पाते हैं। मैथमेटिक्स और साइंस की सब्जेक्ट्स हैं, अगर बच्चे समझ भी ले लेकिन उनको फिर वो चीज़ें लिखने में बड़ा इशू होता है, तो अगर उनको अंग्रेज़ी भी प्रॉपर सिखाए जाएं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाने में। अब जिस तरह से एक टीम हमारे पास आई है, उन्होंने लाइब्रेरी की बात की, तो अगर वो लाइब्रेरी यहाँ पे बनाते हैं तो बच्चों को एक लर्निंग इन्वायरमेंट वहाँ पे मुयस्सर हम कर सकेंगे। वो करे कि मैं तो टाइम करके देती हूँ क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। मेरी हिदायत है बच्चों से कि मैं अनपढ़ हूँ, आपको मेरे तरह नहीं होना चाहिए। कि अभी आप साहिबान यहाँ आए हैं, इसी तरह हमारा भी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे भी यहाँ ऐसे पढ़े कि वो किसी और जगह में जाकर प्रोफेसर हो जाए, प्रिंसिपल बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हर कोई जब अपना बच्चे स्कूल भेजते तो उसका ये ख्वाहिश होता है, लेकिन बदकिस्मती या तो माहौल की कमज़ोरी की वजह से जो है ना हम उस चीज़ को नहीं पा सकते। While the government school works to improve conditions of the existing infrastructure, Gulshan's village of Aminabad struggles to counter another issue: the provision of early childhood education. अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा ECD क्लास में हम चला रहे हैं, 2 टीचर्स हैं हम। हमारे पास स्पेस इतना सही नहीं है, बस 2 क्लासेस हैं, उनमें हम गुजारा करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन वो काफ़ी दूर
है, रास्ते में दरिया है, कभी स्लाइडिंग होता है। ऐसी चीज़ों की ख़तरात की वजह से हम छोटे बच्चों को सेंटर नहीं भेज सकते हैं। ज़्यादातर हम लो कॉस्ट मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जो कि मॉडर्न टेक्निक्स हमारे पास नहीं है, जैसे कि ऑडियो विजुअल मटेरियल्स आजकल ECD में इस्तेमाल होता है, वो चीज़ें हमारे पास नहीं है। हमारे पास इस साल 22 स्टूडेंट्स हैं। पहले यहाँ पे 50 से अबव स्टूडेंट्स थे, वो लोग यहाँ से क्लास फर्स्ट तक पढ़ के गए हैं। तो हमारी भी कोशिश है, कम्युनिटी की भी कोशिश है कि एजुकेशन अच्छा हो, ये छोटे बच्चे जो है इनके लिए सहूलत हो, लेकिन हम पासमानदा है, बहुत दूर है, इस तरह सहूलत हमारे पास नहीं है। तो बाकी रहा ये जगह का, हमारे पास जो ज़मीन है वो है कम्युनिटी का ना, तो उसमें ये बिल्डिंग बनाने में हमारे पास कम्युनिटी के पास इतना वो रिसोर्स नहीं कि हम कोई बिल्डिंग बना सके वहाँ पे। ये भी कम्युनिटी ने बनाया था, बस ये मजबूरी के तहत पे हम ये यूज़ कर रहे हैं। Through various programs conducted by the Akhan Development Network, the community is aware of the importance of early childhood education. However, they lack the skills and resources to address the problems they face. अलिफ से क्या क्या बनता है? अलिफ से हमने क्या सीखा? अंडा। और आ से अनार, आ से अम्मी, आ से अब्बू। The community now hopes Innovate, Educate and Inspire Pakistan will provide the assistance they need by establishing a new early childhood development center for the valley, one that is designed and equipped to provide the students and faculty with modern teaching tools and facilities. कल हमारे स्कूल में इनोवेट, एजुकेट, इंस्पायर पाकिस्तान के कुछ टीम आए हुए थे। टीम ने हमारे साथ एक दिन स्पेंड किया क्लास में। हमने इनको ज़मीन दिखाया। इंशाल्लाह ये लोग अब हमारे लिए न्यू ECD सेंटर बनाएंगे और उसमें ये न्यू टेक्निक के मुताबिक सेटिंग होगा, जहाँ पे हम खुशी से और अपने मर्ज़ी से बच्चे, छोटे बच्चे भी आसानी से वहाँ जा सके और तालीम हासिल करें। ये एक उम्मीद की किरण हमारे पास है। एक टीम हमारे पास आई है। हम ज़रूर अपने स्कूल के अंदर कुछ तब्दीली अब देखेंगे। इंशाल्लाह जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा और एंड होगा तो मुझे उम्मीद है कि हमारे स्कूल जो ना वो काफ़ी बूस्ट अप होगा। हाँ, हर लिहाज से, टीचिंग के हवाले से और दूसरा जो करिकुलम है उस हवाले से भी। Despite the challenges to the school building and development project, people in Shimshal are hopeful. For them, this is an opportunity to welcome change that has a lasting impact on the educational system and the future of their remote valley. As IEI Pakistan prepares to launch the project this March, you can support this remote valley's attempt at raising the bar on the quality of education by volunteering to teach with IEI or donating to help run this program.